हे गाइस, अर्थम दिस साइड और आज से हम शुरू करने वाले हैं लीड कोड 75 क्वेश्चंस की सीरीज। सो लेट्स सॉल्व एरे एंड स्ट्रिंग्स के 3 क्वेश्चंस। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 1768 merge strings alternatively. So let's read the question first. You are given with two strings, okay? You are given with two strings. What you have to do, you have to merge the strings by adding the letters. आपको क्या करना है, इन दोनों strings को merge कर देना है। और कैसे merge करना बता रखा है कि आपको add करने letters in alternating order है, right? Starting with word 1, which means you have to start with word 1 and you have to keep on adding the alternate letters from both the strings, and you have to prepare a merged string in the end, right? अगर कोई स्ट्रिंग दूसरे से बड़ा है तो बचे हुए लेटर्स उसको जस्ट एज इट इज ऑल्टरनेट मर्ज्ड स्ट्रिंग के एंड में लगा देना है, राइट? सो एंड यू हैव टू रिटर्न द मर्ज स्ट्रिंग. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस यूजिंग द एग्जांपल. आपको वर्ड 1 दे रखा है ABC एंड वर्ड 2 दे रखा है PQR, राइट? सो व्हाट यू विल डू, you will start with first character of word 1, right, which is A. Now you have taken a character from word 1, now you will take the character from word 2, which is P, right? Now you have taken A and you have taken P, right? Then you will again come back to word 1 and you will take B this time, right? And then you will go back to word 2 and you will take Q, right? You have taken B, you have taken Q, right? Now you will come back to word 1 and you will take C, and you will come back to word 2 and you will take R, and both the strings are exhausted. So hence when both the strings are exhausted, you will get your merge strings, right, which is A B P Q C R, A B P Q C R, right? Now let's consider one more example where the strings lengths differ, which is string lengths are different. Let's say string 1 was A B C D E F, right? And string 2, let's say, was P Q R only. Now आपके पास string 1 6 लेंथ का, which is obviously greater than string 2, which is of length 3. अब आप ऑल्टरनेटिंग स्ट्रिंग 1 के फर्स्ट लेटर से शुरू करने वाले हैं, विच मीन्स आप ए जोड़ देंगे, देन यू विल कम टू व्हाट, देन विल कम टू स्ट्रिंग 2, वहाँ से कैरेक्टर उठाएंगे एंड देन यू विल गो बैक टू स्ट्रिंग 1. अब वहाँ से फिर से कैरेक्टर उठाएंगे अगला, राइट? अब फिर वापस आएंगे स्ट्रिंग 2 पर कैरेक्टर उठाने, फिर वापस आएंगे स्ट्रिंग 1 पर कैरेक्टर उठाने, फिर वापस स्ट्रिंग 2 पे आएंगे, फिर वापस स्ट्रिंग 1 पे जाएंगे, राइट? बट अब आप देखेंगे कि स्ट्रिंग 2 तो एग्जॉस्ट हो चुका है पूरा. तो दैट्स व्हाट दिस वाज सेइंग. ये कह रहा था कि अगर कोई भी स्ट्रिंग बड़ा होता है और उसमें कुछ लेटर बच जाते हैं और दूसरा स्ट्रिंग पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, जो बचे हुए लेटर्स हैं उसको आप एंड में अपेंड कर देंगे एज इट इज, राइट? सो इन दिस केस दिस वुड बी द आंसर. वी हैव जस्ट पेंडेड द लेफ्ट ओवर्स in the end of the actual merge string, right? So this would be our final answer. So let's build the intuition. How would we approach this question? It would be very easy. We just have to consider 2 pointers on both of the strings. For example, let's take the example again. Let's B C D E F, right? And string 2 P Q R, right? So we would put a pointer I here and pointer J here. हम एक पॉइंटर आई से इसको अट्रैक्ट करने वाले हैं एंड एक पॉइंटर जे से स्ट्रिंग 2 को अट्रैक्ट करने वाले हैं, राइट? सो व्हाट विल डू, वी हैव टू स्टार्ट विद वर्ड 1 एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, स्टार्टिंग विद वर्ड 1, राइट? सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक आंसर स्ट्रिंग ले लेंगे विच इज एम्प्टी, ऑब्वियसली, राइट, विच इज एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट? इनिशियली इट इज एम्प्टी. हम क्या करेंगे, हम तब तक लूप चलाएंगे जब तक आई लेस देन है स्ट्रिंग 1 से साइज से, साथ ही साथ जे भी छोटा है किसे, जे छोटा है स्ट्रिंग 2 के साइज से. सो दिस वुड बी आर कंडीशन ऑफ द लूप, राइट? हम क्या करेंगे, we would add this in the answer, right? We would add this in the answer as it is, which means we would add this in the answer, string of I, right? String 1 of I in the answer as it is. Now how would we jump to the other string? How would we know that we had taken a character from string 1 and now we have to move to string 2? How would we know that? So for that purpose we would simply take a boolean variable which would obviously let's name it let's name it turn. We would initially set it true or false, whatever you want. I would say that हम ट्रू मानेंगे कि ट्रू है जब वो, तो हम कहेंगे जब भी बूलियन वेरिएबल टर्न जो हमने बनाया है वो ट्रू है तो स्ट्रिंग 1 की चांस है कैरेक्टर देने की. और स्ट्रिंग 1 जैसे ही कैरेक्टर दे देगा अपना एक, वो क्या करेगा, 2 ऑपरेशन करेगा. एक तो अपना पॉइंटर आगे बढ़ा लेगा और जो ये टर्न वेरिएबल है उसको फॉल्स कर देगा, विच मीन्स जैसे ही वो फॉल्स हो जाएगा उसका मतलब है कि हम अगला कैरेक्टर स्ट्रिंग 2 से लेने वाले हैं, राइट? स्ट्रिंग 2 से लेने वाले हैं. और what else we can do, other approach of this question would be कि आप 2 कैरेक्टर्स छोटे स्ट्रिंग को आइटरेट करिए. मान लीजिए ये छोटा स्ट्रिंग था, इन दोनों इस छोटे स्ट्रिंग को आइटरेट करिए
और फर्स्ट कैरेक्टर इससे उठाइए, सेकंड कैरेक्टर इससे उठाइए, एक साथ ऐड कर दीजिए. फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा फॉर लूप लगा लीजिए i0 से n तक, राइट. और आंसर में हाथ तो हाथ एज इट इज जोड़ते जाइए क्या, स्ट्रिंग 1 फर्स्ट, स्ट्रिंग 1 ऑफ i, राइट, एंड स्ट्रिंग 2 ऑफ i. और बचा हुआ जो भी स्ट्रिंग होगा उसको आप इस फॉर लूप के बाहर एडजस्ट कर सकते हैं, दो अलग अलग वाइल लूप लगा के या फॉर लूप लगाकर, राइट. सो दिस वुड बी सेकंड अप्रोच, बट आई वुड गो विद द टर्न अप्रोच, राइट. आई वुड गो विद द टर्न अप्रोच विच वॉज माई इनिशियल अप्रोच. क्योंकि मैं झूठ क्यों बोलूँ भाई, जब मैंने ये सोचा था तो मैं यही बताऊंगा, राइट. सो टर्न हम करते रहेंगे चेंज बार बार, और जैसे ही टर्न फॉल्स होगी तो इफ के अंदर कंडीशन चेक होगी कि भाई टर्न अब इसकी है, फॉल्स है तो टर्न है s2 की, स्ट्रिंग 2 की, अपना कैरेक्टर देने की, डोनेट करने की आंसर को. सो ये क्या करेगा, सिंपल हम उस केस में क्या कर देंगे, दूसरे वाले स्ट्रिंग से ले लेंगे विच मीन्स s2 ऑफ j. और जैसे ही अपना कैरेक्टर देगा ये भी क्या करेगा, अपना काउंटर बढ़ा लेगा और टर्न को वापस क्या कर देगा, ट्रू कर देगा फॉर नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ द लूप, राइट. सो दिस वुड बी आर इंट्यूशन, बट दिस वुड ओनली वर्क जब तक दोनों पॉइंटर्स छोटे हैं. फॉर एग्जाम्पल i भी 3 पर था, j भी 3 लेस देन इक्वल्स टू 3, राइट. j इज लेस देन इक्वल्स टू 3 बट i इज लेस देन इक्वल्स टू 6. तो ये j जो लेस देन इक्वल्स टू 3 है, क्योंकि स्ट्रिंग 2 का साइज 3 है ना, तो j लेस देन इक्वल्स टू 3, लेस देन 3 पहले एग्जॉस्ट हो जाएगा, विच मीन्स ये बच जाएगा स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग 1 ऑब्वियसली बड़ा है. तो हम इस कंडीशंस को, ऑब्वियसली स्ट्रिंग 2 भी बड़ा हो सकता है, स्ट्रिंग 1 छोटा होगा कभी किसी केस में, तो हम इन दोनों कंडीशंस को वाइल लूप लगा के एडजस्ट कर देंगे बाहर कि भाई जब तक इंडिविजुअली बचे हुए कैरेक्टर्स को एज इट इज जोड़ना है, तो इंडिविजुअली जो भी कैरेक्टर बचा हो, चाहे स्ट्रिंग 1 के बचे हो चाहे स्ट्रिंग 2 के बचे हो, अलग अलग दो लूप लगा के एडजस्ट कर देंगे. तो हम कह देंगे भाई जब तक आई तुम्हारा स्ट्रिंग 1 के साइज से छोटा है, आंसर में जोड़ते रहो व्हाट, स्ट्रिंग 1 ऑफ आई, बचे हुए कैरेक्टर्स जोड़ दो. सेम फॉर व्हाट, सेम फॉर s2, राइट. हम क्या कहते हैं s2 के केस में, s2 ऑफ j जोड़ते रहो, बचे हुए कैरेक्टर्स s2 में अगर कुछ बच गए हैं, s1 के सारे एग्जॉस्ट हो गए हैं, राइट. लेट्स लुक एट द कोड क्विकली. सो दिस वाज द ओरिजिनल फंक्शन विच वाज गिवन टू अस. इसमें हमें वर्ड्स दिए थे दो, मैंने इनिशियली एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिया है और दो पॉइंटर्स ले लिया है j. आई वुड बी पॉइंटिंग टू व्हाट, s1, एंड j वुड बी पॉइंटिंग टू s2, राइट. फिर मैंने एक टर्न वेरिएबल ले लिया है, टर्न वेरिएबल इनिशियली वो सेट टू ट्रू, विच मीन्स दैट ट्रू होगा तो s1 चलेगा, s1 अपना कैरेक्टर देगा, और फॉल्स होगा तो s2 अपना कैरेक्टर देगा. फॉर अब देखते हैं यहाँ पर हमने टर्न ट्रू करी है. अब हमने कहा टर्न अगर ट्रू है तो भाई इनिशियली टर्न ट्रू ही होगी ना, क्योंकि टर्न अगर ट्रू है तो वर्ड 1 में से जोड़ रहे हैं, विच वॉज द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन, दैट आपको वर्ड 1 से पहला कैरेक्टर लेना है, राइट. वर्ड 1 से फर्स्ट कैरेक्टर लेना है, राइट. तो हमने डायरेक्टली इसमें जोड़ दिया है. देन what we had done, हमने जैसे ही कैरेक्टर लिया, what we will do, हमने कैरेक्टर लेके हम पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे, राइट. पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे, i++ कर दिया, एंड टर्न को सेट कर दिया फॉल्स फॉर नेक्स्ट आइटरेशन, ताकि अगली आइटरेशन में स्ट्रिंग 1 अपना कैरेक्टर ना डोनेट करे और स्ट्रिंग 2 डोनेट करे, राइट. स्ट्रिंग 2 डोनेट करे, राइट. Then in the next iteration turn would become false obviously, and when the turn would become false, this case would work because यहाँ पर तो ये false हो जाएगा ना, टर्न फॉल्स है तो ये वाला केस इफ वर्क ही नहीं करेगा, एल्स फॉर वर्क करेगा. तो हम क्या करेंगे, वर्ड 2 से कैरेक्टर उठाएंगे और इसमें जोड़ देंगे आंसर, एम्प्टी स्ट्रिंग आंसर में, और फिर j का पॉइंटर बढ़ा देंगे और टर्न को वापस से क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, विच दिस टर्न वेरिएबल इज बेसिकली allowing us to alternate sequence in which we are adding the character to the answer string, right. और बचे हुए कैरेक्टर्स के लिए हमने इंडिविजुअल लूप लगा दिया एक वाइल का, कि अगर s1 के कैरेक्टर्स बच गए हैं और s2 के सारे खत्म हो गए हैं, तो एज इट इज उनको अपेंड कर दो एट द एंड ऑफ द आंसर स्ट्रिंग, राइट. और अगर आपकी s1 सारा एग्जॉस्ट हो गया है और s2 बच गया है, विच मीन्स j पॉइंटर वाले बच गए हैं, तो j पॉइंटर वाले विच मीन्स s2 के बचे हुए कैरेक्टर्स को एज इट इज आंसर में अपेंड कर दीजिए. So this is our approach, and we would just return the answer. So let's quickly go through the time complexity, right. So time complexity कहाँ से मिल रही है आपको, देखिए कांस्टेंट यहाँ पर लूप चल रहा है, कब यहाँ पर लूप चल रहा है, मान लीजिए कॉमन ये लूप चल रहा है मिनिमम ऑफ m, राइट, मिनिमम ऑफ n, and this loop is working for rest of the string, right. So this would be working for rest of the string would be, let's say, minimum of m of n was m, right. Minimum of 3 or 6 was what, 3, right. और ये बचे हुए लेंथ के लिए लगेगा, क्यों, जो भी बड़ा स्ट्रिंग होगा उसकी जो लेंथ बच जाएगी, लेंथ बड़े स्ट्रिंग की बचेगी, ऑब्वियसली 6 बड़ा था, यहाँ कितनी भी लेंथ बच जाएगी, 3 लेंथ बच जाएगी, तो ये 3 टाइम्स चलेगा, विच मीन्स ओवरऑल ये कितना चल रहा है, ओवरऑल ये लूप चलेगा m + n टाइम्स, राइट. सो दिस वुड बी आर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर व्हाट, m + n, and so that was our time complexity, and same for what,
Same for space complexity for this string answer. Obviously we are adding both the strings, right? इसका size m था, इसका size n था, तो overall string का size m plus n हो जाएगा ना, right? So that was our approach. That was our solution for this question, right? So to solve this question, let's quickly not waste time and go to the second question. Second question in this list was question number 2 in this list was greatest common divisor of strings, right? Greatest common divisor of strings. Let's quickly understand the question first. हमें दो strings दिए हैं छोटी. हमें कह रखा है जो t string है वो डिवाइड कर रहा है इसको, राइट? t string कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है इसको, इंटीजर्स नहीं है, स्ट्रिंग्स हैं, और डिवाइड कर रहा है. और डिवाइड कब करेगा? इफ एंड ओनली इफ, अगर s तभी डिवाइड करेगा जब बहुत सारे t को जोड़कर s मिल रहा हो हमें, या फिर जो s है वो मल्टीपल t से बना हो, जोड़ जोड़कर. अभी एज इट इज ये 3t नहीं हो जाएगा क्योंकि मैं कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ. दिस मीन्स दैट अगर हमारा कोई s स्ट्रिंग था ए बी और t स्ट्रिंग था, लेट्स से दिस वाज s एंड t स्ट्रिंग वाज ए बी, अगर ये s बहुत सारे t से जुड़कर बना है, एक या एक से ज़्यादा t से जुड़कर बना है, तब ये t जो है कंप्लीटली डिवाइड कर देगा s को, राइट? तो ऑब्वियसली ये दो ए बी से बना है, सो आई कैन से दैट ये दो t से बना है, t प्लस t से. सो इफ दिस इज द केस कि s आपका कुछ नहीं है, बस t को जोड़ बार बार बना है, तो आई कैन से दैट जो s है, जो t है, वो कंप्लीटली डिवाइड करेगा s को, राइट? सो दैट्स व्हाट गिवन इन दिस क्वेश्चन. हमें क्या निकालना है? दोनों स्ट्रिंग का लार्जेस्ट स्ट्रिंग निकालना है दोनों स्ट्रिंग में से, सच दैट ये जो स्ट्रिंग है वो दोनों को डिवाइड करे. नाउ दिस इज अ बेसिक प्रॉब्लम ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर. हाउ दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर? लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड this. Let's first understand what is greatest common divisor. Let's say you have two integers 3 and 6, right? So greatest common divisor, जैसे कि नाम कह रहा है, greatest common और divisor. सबसे पहले divisor लिख देते हैं दोनों के. This 1 and 3, 1 2 3 and 6, right? So इन दोनों में ये सब divisors, these are divisors of 3, these are divisors of 6. तो इन दोनों में common और सबसे बड़ा divisor कौन सा है? सो कॉमन तो 1 भी है, बट बड़ा नहीं है सबसे. क्यों? एक और बड़ा मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है हमें, जो बड़ा है 1 से, ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट है. तो 3 वुड बी द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर इन दिस केस, राइट? सो दिस इज व्हाट वी मेंट बाय ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, राइट? हाउ दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर? लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड बाय दिस एग्जांपल. You given string 1, let's say this was s and this was 3t, no, right? So abc जो है it consists of two ABCs, right? Two ABCs, and string 2 also consists of ABC. तो आपको ऐसा, let's say this was S1 and this was S2, this was not T. आपको ऐसा T ढूंढना है जो इन दोनों ही स्ट्रिंग को डिवाइड भी करे और उसकी लेंथ मैक्सिमम होनी चाहिए, राइट? उसकी लेंथ मैक्सिमम होनी चाहिए, तो ये दोनों स्ट्रिंग को डिवाइड करे. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस वुड बी ABC, राइट? ABC इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, खट. एंड ABC would divide this string also. Two ABCs are there, right? So this would be our maximum string which was dividing both the strings, राइट? एंड एक कॉमन से इंट्यूशन इसमें क्या बिल्डअप होता है कि भाई जो भी आंसर स्ट्रिंग रहेगा उसमें शुरू का जो कैरेक्टर होगा वो तो सेम ही रहेगा, एटलीस्ट शुरू का कैरेक्टर तो सेम ही रहेगा, राइट? अब आपको लग रहा हो कि भाई इस पर्टिकुलर एग्जांपल को देखकर कि भाई ये स्ट्रिंग 2 एज इट इज आंसर तो नहीं हो गया, क्योंकि भाई ये तो बेसिक यूनिक स्ट्रिंग बन रहा है ना, स्ट्रिंग 2 एज इट इज आंसर तो नहीं हो गया, राइट? सो ऐसा नहीं है. नेक्स्ट एग्जांपल अभी देखेंगे तो समझ में आएगा. नेक्स्ट एग्जांपल में स्ट्रिंग 1 गिवन था ए बी एंड स्ट्रिंग 2 वाज गिवन ए बी, राइट? सो इस केस में आप सोच सकते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि आपका आंसर ए बी बन सकता है, बट दैट वुड नॉट बी द केस. क्यों भाई? आपको ढूंढना क्या? आपको लार्जेस्ट स्ट्रिंग एक्स ढूंढना है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, राइट? अगर मैं ए बी आंसर दे दूं अपना, सो आप कहेंगे कि भाई ए बी स्ट्रिंग 2 को डिवाइड कर रहा है, बट मैं कहूंगा कि भाई ए बी स्ट्रिंग 2 को डिवाइड कर रहा है, बट ए बी इस स्ट्रिंग 1 को डिवाइड नहीं कर रहा है. क्यों? ए बी से ए बी कट जाएंगे, बट ये ए बी बच जाएगा ना. और डिवाइड की कंडीशन क्या थी? इस ए बी को ही बार बार जोड़कर मुझे ये स्ट्रिंग बनाना है और ये स्ट्रिंग बनाना है, राइट? तो दैट वुड नॉट बी द केस. सो आंसर वुड बी व्हाट इन दिस केस? ए बी. क्यों? मैं इस ए बी को जोड़ के ए बी बना सकता हूँ एंड ए बी भी बना सकता हूँ, राइट? तो मैं इस स्ट्रिंग से इन दोनों स्ट्रिंग्स को डिवाइड कर सकता हूँ, और ये लार्जेस्ट लेंथ का भी है, अपनी जो पॉसिबल लार्जेस्ट लेंथ है, तो मैं कह सकता हूँ ये स्ट्रिंग मेरा आंसर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, अब ऐसा कोई कॉमन स्ट्रिंग है ही नहीं इनमें, जो इन दोनों को डिवाइड करे. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस ए बी वॉज कॉमन और इन दिस केस ए बी सी वॉज कॉमन. अब इन दोनों में कोई कॉमन ही नहीं है, तो मैं क्या कहूँगा? भाई इसका कोई ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ही नहीं है. सो आई वुड से दैट आई वुड रिटर्न जस्ट एन एम्प्टी स्ट्रिंग इन दिस केस, राइट? एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आवर इंट्यूशन वुड बी इन दिस केस. इन दिस क्वेश्चन वी वुड जस्ट व्हाट टेक. अब आपको इतना तो पता चल गया ना कि भाई शुरू से डिवाइड करने की कंडीशन यही है ना कि एटलीस्ट एक टी से जुड़कर बने हैं, तो टी
जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो तो आएगा ही आएगा भाई आंसर स्ट्रिंग में, ऑब्वियसली तभी डिवाइड हो रहा है ना। अब इसको मैं बार बार जोड़ूंगा, एबीसी को बार बार जोड़ूंगा, तो मैं एबीसी या ए से ही शुरू होने वाली तो बना सकता हूँ, ए से ही शुरू होने वाली तो बना सकता हूँ। अब ऐसा तो नहीं कि मैं ए बी से बी सी ए बना दूंगा बार बार जोड़ के, से ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो अब आपकी कॉमन इंट्यूशन अपने अंदर रखना है कि भाई जो भी मेरा आंसर होगा उसमें उसमें होगा तो वो सबस्ट्रिंग ही होगा, तो वो इनका ही सबस्ट्रिंग, किसी इनमें से किसी का ही सबस्ट्रिंग होगा। बट एक जो इनिशियल जो फैक्ट है वो क्या है कि वो इनिशियली जीरो से शुरू होगा, इनिशियली जीरो इंडेक्स कॉमन होगा उसमें दोनों में, आंसर में और स्ट्रिंग्स में, राइट। सो मैं कह सकता हूँ कि भाई हाँ सबस्ट्रिंग जो है वो होगा तो इनमें से ही, बट एक जो फैक्ट मुझे पता है वो जीरो से शुरू होगा सबस्ट्रिंग, राइट। सो इतना दो चीजें हमें पता चल गई कि आंसर तो सबस्ट्रिंग होगा, इन दोनों का ही सबस्ट्रिंग होगा, और वो जीरो से भी शुरू होगा। अब बट जीरो से शुरू होकर वो कहाँ तक सबस्ट्रिंग होगा वो हमारा जो है मेन क्वेश्चन है, राइट। सो मैं कह सकता हूँ कि आंसर तो आपका सिंपल सा हो गया, क्या, सबस्ट्रिंग ऑफ एनी ऑफ द स्ट्रिंग्स, सबस्ट्रिंग। अब इनमें से ही आंसर निकलेगा तो इन्हीं का सबस्ट्रिंग होगा ना। तो आप कहेंगे कि किसी भी स्ट्रिंग का सबस्ट्रिंग ले लो, किसी भी स्ट्रिंग का सबस्ट्रिंग ले लो, बट वो शुरू तो होगा किससे। लेट्स से मैंने स्ट्रिंग 1 का लिया सबस्ट्रिंग और मैंने कहा वो शुरू होगा जीरो से और कहाँ तक शुरू होगा आप उसे ढूंढते हैं, राइट। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं लूंगा कहाँ तक हो जाएगा, उस लेंथ को लेने के लिए मैं क्या कहूँगा कि भाई जीसीडी होगा वो दोनों का, जीसीडी किस किस का, इसकी लेंथ का लेट्स से 3 एंड इसकी लेंथ का लेट्स से 6, इन दोनों का जीसीडी होगा। सो दिस इज व्हाट वी शुड नो अबाउट जीसीडी क्वेश्चंस इन स्ट्रिंग, राइट। अगर हमें ऐसा क्वेश्चन एनकाउंटर करता है तो दिस इज व्हाट वी शुड रिमेंबर, राइट। सो इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग 1 या स्ट्रिंग 2 किसी का भी सब स्ट्रिंग होगा वो शुरू जीरो से ही, बट वो जाएगा कहाँ तक, जीसीडी ऑफ एनी ऑफ द साइज आई मीन बोथ ऑफ द साइज ऑफ द स्ट्रिंग्स, राइट। विच मीन्स स्ट्रिंग 2 का भी साइज लेना है आपको यहाँ पर, साइज ऑफ string 2 comma size of string 1, right. So this would be our answer. Now let's quickly understand how would we solve the GCD problem, right. We would not be using predefined GCD function, that would not be any much of learning, so we would create our own GCD function. So simply what we'll do, first understand how GCD is taken out, right. Let's say there are two numbers 16 and what 24, right. 16 and 24, what we will say is let's find the GCD, right. So what I will do, I would just divide this by this. I would say that 0 and obviously 0 and 16 and again ऐसे तो निकालते हैं GCD, फिर ये जो यहाँ पर होता है वो अंदर आ जाता है, राइट, यहाँ पर आ जाता है वो 24 and 16 1 just 16 which would obviously left with 8. अब इस रिमाइंडर से किसको डिवाइड करना है, यहाँ पर जो डिवाइजर था, so 16 divided by 8 which would give us 8 to the 16, and if it completely divides, if the remainder becomes 0, we would say whatever the value we were dividing with would be our what, would be our GCD. So in this case of 16 and 24, 8 would be our GCD, 8 would be our greatest common divisor. Let's analyze it. Let's find the divisor first. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 24, right. So अब 1 कॉमन है, 2 कॉमन है एंड 4 कॉमन है एंड 8 कॉमन है, एंड 8 इज द लार्जेस्ट. सो इस केस में ऑब्वियसली हमारा जीसीडी क्या आ गया, 8 आ गया. सी वी वुड से इन दिस केस 8 वुड बी आर जीसीडी. अब हम इसको प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, भाई जीसीडी का प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं. सो हमने कहा इनिशियली भाई दो नंबर जो भी तुम लो, तो कहीं ना कहीं तुम क्या कर रहे हो, मॉड्यूलो निकाल रहे हो. ऑब्वियसली वी आर इंटरेस्टेड इन रिमाइंडर क्वेश्चन से हमें कोई मतलब नहीं कि भाई क्वेश्चन क्या है, वी डोंट केयर अबाउट इट, वी जस्ट केयर अबाउट रिमाइंडर, राइट. वी आर जस्ट वरीड अबाउट द रिमाइंडर. सो हमें कहीं ना कहीं मॉड्यूलो लेना है. किस किस का मॉड्यूलो लेना है भाई, ए का मॉड्यूलो लेना है बी से, ये तो हमने करा. हमने 24 से डिवाइड करके 16 का रिमाइंडर निकाला है. दिस वाज आर ए एंड दिस वाज आर बी, तो हमने ए मॉड्यूलो बी निकाला, राइट. ए मॉड्यूलो बी निकाल के जो भी आया हमारा उसको हमने फिर से क्या निकाला, उसको हमने डिवाइड करा, उसका 24 का मॉड्यूलो निकाला, विच मीन्स हमने बी का मॉड्यूलो निकाला. जो हमारा पुराना बी था उसका मॉड्यूलो निकाला किससे, इस रिमाइंडर से. So I can put it in a loop like this, like this. I would say that जब तक आपका b 0 नहीं हो जाता तब तक आप क्या करो, जब तक आपका b 0 नहीं हो जाता, just a second,
जब तक आपका बी जीरो नहीं आ जाता आप क्या करते रहो, टेम्प में बी को स्टोर करते रहो, राइट। टेम्प में 24 को मैंने स्टोर कर दिया, राइट, 24 को मैंने टेम्प में स्टोर कर दिया। फिर मैंने बी को अपडेट कर दिया ए मॉड्यूलो बी से, विच मीन्स 16 से अपडेट कर दिया, राइट। और ए को फिर क्या कर दिया, ए को फिर कर दिया टेम्प, राइट, ए को फिर टेम्प कर दिया। और अभी भी बी जीरो नहीं है, दोबारा लूप चलेगा। अब की बार मैं क्या निकालूंगा, दोबारा बी को अपडेट करूंगा किससे, ए मॉड्यूलो 24 डिवाइड बाय 16, राइट। हमने वही करा है, 24 डिवाइड बाय 16 करा है, जो भी मॉड्यूलो आया उसे बी में स्टोर कर दिया, बिकॉज हम मॉड्यूलो से बार बार जो भी हमारा रिमाइंडर आ रहा है उससे डिवाइड कर रहे हैं, उसे डिवाइड करके फिर से रिमाइंडर निकाल रहे हैं। सो हमने उसे बी में स्टोर कर लिया। सो दिस वॉज आर प्रोग्राम फॉर दैट। एंड जैसे ही आपका बी जीरो हो जाएगा, मैंने कहा जैसे ही आपका बी जीरो हो जाएगा, हमारा जो ए होगा वो आंसर हो जाएगा, हमारा जो ए होगा अपडेटेड वो आंसर हो जाएगा, विच मीन्स हम रिटर्न कर देंगे ए। सो हमारा ऑब्वियसली स्ट्रिंग वाले केस में आंसर क्या होगा, बट एक चीज मैं जो आपको बताना भूल गया वो मैं बता देता हूँ, सॉरी। ये स्ट्रिंग्स तभी आंसर देंगे आपको, तभी आंसर एग्जिस्ट करेगा इनका, जब ये स्ट्रिंग्स को जोड़कर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर तभी स्ट्रिंग्स में आता है। कंडीशन जान लीजिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर तभी आएगा स्ट्रिंग्स में जब स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 बराबर होगा स्ट्रिंग 2 प्लस स्ट्रिंग 1 के। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों को जोड़ेंगे तो एबीसी आएगा, राइट। और उल्टा भी जोड़ेंगे तब भी सेम स्ट्रिंग बनेगा, राइट। सो आई वुड से दैट दिस वुड बी द कंडीशन फॉर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ऐसा स्ट्रिंग एग्जिस्ट करने का जो दोनों को डिवाइड करे, यही कंडीशन होगा, राइट। सो हम इसको शुरू में चेक कर लेंगे। अगर ये नॉट ट्रू है, विच मीन जीसीडी एग्जिस्ट नहीं करता, तो वी वुड जस्ट रिटर्न द एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट। इन दिस केस इन दोनों का अब पहले अगर जोड़ेंगे स्ट्रिंग 1 टू स्ट्रिंग 2, दिस वुड गिव अस लीड कोड, एंड उल्टा जोड़ेंगे स्ट्रिंग 2 टू स्ट्रिंग 1, दिस वुड गिव अस कोड लीड। अब ये दोनों तो सेम नहीं है ना, obviously ये दोनों सेम नहीं है, तो obviously answer would be our empty string. So answer would be an empty string in this case. Otherwise what you would return any of the, अब यहाँ पर string 2 भी ले सकते हैं, आप string 1 भी ले सकते हैं, आंसर सेम रहेगा। सब स्ट्रिंग लेंगे, यहाँ पर 0 देंगे, और लेंथ कहाँ तक लेना है वो आप कैसे देंगे, जीसीडी से देंगे, दोनों के साइज के, दोनों स्ट्रिंग के साइज के। फॉर एग्जाम्पल इसका 3 था, इसका 6 था, एंड वो आंसर वॉज 3 इन दिस केस, जीसीडी वॉज 3 इन दिस केस। सो 0 से 3 लेंथ का आप सब स्ट्रिंग लेके आंसर रिटर्न कर देंगे, which means in this case 0 से 0 इंडेक्स से 3 लेंथ का, which is ABC is our answer, right। in this case size was 6 and its size was 4। इन दोनों का GCD क्या आएगा, greatest common divisor would be 2। so 0 इंडेक्स से 2 लेंथ का सब स्ट्रिंग उठाओ, किसी में से भी, स्ट्रिंग 1 से उठा लो या स्ट्रिंग 2 से उठा लो, वो आंसर हो जाएगा हमारा। so that would we would return that, right। so this was our question, right। so let's quickly go through the third question in this list. Third question is very easy question. आपको read करते हैं फटाफट। Kids with the greatest number of candies, right? So there are n kids with candies, n बच्चे हैं candies के साथ, चॉकलेट के साथ। यह गिवन है एन इंटीजर एरे। अब आपको एक इंटीजर एरे भी गिवन है कैंडीज, राइट। इंटीजर एरे गिवन है, अब तक हमें क्या पता चला, एक n किड्स हैं और एरे गिवन है इंटीजर्स, और हर एक कैंडी आई ऑब्वियसली रिप्रेजेंट कर रही है कुछ अमाउंट ऑफ कैंडीज विद द ith किड, विच मीन्स ये जो कैंडीज एरे है, ये जो 2 वैल्यू है, ये कह रहा है कि भाई 0th वाले बच्चे के पास 2 कैंडीज हैं, 1th इंडेक्स वाले बच्चे के पास 3 कैंडीज हैं, और 2th इंडेक्स वाले बच्चे के पास 5 कैंडीज हैं, एंड सो ऑन, राइट। सो दैट्स व्हाट दिस मेंट। अब आपके पास थोड़ी एक्स्ट्रा कैंडी भी है, आप कंजूस नहीं है, आपने थोड़ी बचा ली अपने लिए, आपके पास एक्स्ट्रा कैंडी भी है, तो आप क्या करेंगे, ये एक्स्ट्रा कैंडीज को व्हाट यू विल डू, यू विल रिटर्न अ बूलियन एरे रिजल्ट। बूलियन एरे होगी ऑब्वियसली, एरे बूलियन एरे का मतलब है कि भाई उसमें सारी वैल्यू बूलियन होगी, यानी ट्रू या फॉल्स, राइट। बूलियन एरे रिटर्न करेंगे ऑफ सेम लेंथ की होगी ऑब्वियसली, एन रिजल्ट कब ट्रू होगा, उस एरे में वैल्यू कब ट्रू होगी, तभी ट्रू करनी है आपको ऑब्वियसली, सेम साइज की, तो तभी ट्रू करनी है जब आप एक्स्ट्रा कैंडीज उस पर्टिकुलर इंडेक्स वाले बच्चे को देते हैं, और उसको देने के बाद, ये ऑपरेशन करने के बाद जब आप टोटल एरे देखते हैं तो उस इंडेक्स वाले बच्चे के पास मैक्सिमम कैंडीज आ जाती हैं। तो अगर ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा हो जाता है तो उस इंडेक्स पे आप ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देंगे उस इंडेक्स पे। फॉर एग्जाम्पल, फटाफट एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। आपको ये 5 बच्चे दिए थे जो चॉकलेट खाते थे, राइट, जो चॉकलेट खाते थे, उनके पास 0th वाले इंडेक्स के पास 0th वाले इंडेक्स वाले बच्चे के पास 2 कैंडीज हैं, इसके पास 3 है, इसके पास 5 है, इसके पास 1 है, इसके पास 3 है, राइट। सो आपको सेम साइज की एरे रिटर्न करनी है विद ट्रू एंड फॉल्स बूलियन एरे, ऑब्वियसली विद ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज। आपके पास एक्स्ट्रा 3 कैंडी थी, जो आप कंजूस थे, बचा के रखी थी, आपके पास 3 कैंडीज थी, और आपको क्या करना है, बारी बारी सब बच्चों को देनी है।
पहले इस बच्चे को दी, फिर इस बच्चे को दी, फिर इस बच्चे को, फिर इस बच्चे को, फिर इस बच्चे को, राइट। बारी बारी सबको देनी है और परमानेंटली किसी के पास नहीं छोड़नी है, तो बारी बारी दे के वापस ले लेनी है, राइट। सो इस बच्चे को जैसे आप, अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है अगर मैं ये 3 कैंडीज इस बच्चे को देता हूँ, 2 वाले बच्चे को देता हूँ, तो इसकी कैंडीज ऑब्वियसली बन जाएंगी 5 और एरे हमारी कुछ ऐसी दिखाई देगी कैंडीज देने के बाद उसको। अगर अगर कैंडीज देने के बाद जितनी इसके इस बच्चे के पास टोटल कैंडीज हो जाएंगी विच वुड बिकम 5, अगर ये जो 5 कैंडीज उसके पास हो जाएंगी, ये पूरी एरे का मैक्सिमम है, ये पूरी एरे की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर है, उसके पास सबसे ज्यादा कैंडीज हो गई, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, अदरवाइज हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। सो ऑब्वियसली 5 हो गई है, तो यहां पर हम क्या रिटर्न कर देंगे? ट्रू, ऑब्वियसली ट्रू रिटर्न कर देंगे। नाउ व्हाट यू वुड डू, आप 3 कैंडीज इसको देने के बाद वापस ले लेंगे इससे, सो 5 से वापस ही वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 से वैल्यू हो जाएगी वापस 2, क्योंकि 3 कैंडीज वापस लेनी है आपने। अब आप क्या करेंगे? अभी 3 कैंडीज आप अगले बच्चे को देंगे, विच मीन्स अब आप ये वाले बच्चे को कैंडी देंगे, तो अब कैंडीज के बाद 6 हो जाएंगी 3 से, 3 + 3, और एरे कुछ ऐसी हो जाएगी। अब आप फिर से चेक करेंगे भाई कैंडी देने के बाद इस बच्चे को, क्या इस बच्चे के पास ही मैक्सिमम कैंडीज हो गई हैं पूरी एरे की? ऑब्वियसली हो गई हैं, तो आप उस इंडेक्स पे भी ट्रू रिटर्न कर देंगे। नाउ वापस कैंडी ले लेंगे इससे, वापस कैंडी ले लेंगे और इसे वापस कर देंगे क्या? 3। अब आप अगले बच्चे को कैंडी देंगे, ये एक्स्ट्रा कैंडीज जो 3 है आप अगले बच्चे को देंगे, ये 5 से 8 हो जाएगा। फिर से चेक करेंगे कि कैंडीज देने के बाद क्या इस बच्चे के पास मैक्सिमम कैंडीज हो गई है पूरी एरे में? हो गई है ऑब्वियसली, तो इस इंडेक्स पे भी ट्रू रिटर्न कर देंगे, राइट। अब क्या करेंगे? अब इससे कैंडीज वापस ले लेंगे, तो वापस इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। अब अगले बच्चे को दे देंगे, उसके पास एक ही कैंडी थी, और कैंडीज देने के बाद और 3 कैंडीज और दे दिया आपने, तो उसके बाद कैंडीज हो जाएंगी उसके पास 4। आप चेक करेंगे कि भाई ये जो 4 कैंडीज हो गई इसके बाद, क्या ये मैक्सिमम कैंडीज हैं इस एरे में? ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि इससे बड़ी कैंडीज तो पिछले वाले बच्चे के पास ही थी, तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा, इस इंडेक्स पे आप रिटर्न कर देंगे फॉल्स। और नेक्स्ट उस पर आ जाएंगे, वापस कैंडीज ले लेंगे, पहले इस पे वापस कैंडीज अगर मैं लेता हूँ इससे, सो इससे छीन लेते हैं फटाफट कैंडीज, तो ये वापस 1 हो जाएंगी इसके पास। और आप क्या करेंगे? ये कैंडीज उठा के, एक्स्ट्रा कैंडीज उठा के अब अगले बच्चे को देंगे, विच इज 3। ऑब्वियसली इसको दे देंगे तो इसकी कैंडीज बढ़ जाएंगी, खा थोड़ी ले गए, इसकी कैंडीज बढ़ जाएंगी, 3 + 3 वुड बिकम 6। अब ये जो 6 वैल्यूज है, आप चेक करेंगे क्या ये 6 वैल्यू मैक्सिमम हो गई है पूरी एरे की? अगर हो गई है तो इस इंडेक्स पे ट्रू रिटर्न कर देंगे, राइट। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन, और लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड द इंट्यूशन बिहाइंड इट। इंट्यूशन वुड बी व्हाट? आप क्या करेंगे? सिंपल, हर सिंपल, let's take the array, let's take this array, right, 2 3 5 1 3, right, 2 3 5 1 3, right, this was the array and extra candies was 3। आप क्या करेंगे? फर्स्ट आई से पूरा लूप आइटरेट, पूरी एरे आइटरेट करेंगे और बारी बारी बच्चों को कैंडीज देंगे। आपको क्या करना है? पहले कैंडीज देनी है, तो आई वुड से पहले कैंडीज देनी है। नेक्स्ट में चेक करना है क्या वो मैक्सिमम है, क्या वो मैक्स कैंडी हो गई है, क्या वो मैक्स कैंडी है? क्वेश्चन मार्क, सॉरी। और अगर वो मैक्स कैंडी है तो रिटर्न कर देंगे क्या? मैक्स कैंडी पे ट्रू रिटर्न कर देंगे, नहीं है अगर है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स, उस पर्टिकुलर आंसर एरे में, राइट, उस इंडेक्स पे, पर्टिकुलर इंडेक्स ith पे, राइट। और फिर क्या करेंगे? कैंडीज देने के बाद उस बच्चे से वापस ले लेंगे कैंडी जिसको दी थी, राइट, वापस ले लेंगे, क्योंकि हम तो कंजूस हैं, वापस ले लेंगे, राइट। सो दिस वुड बी आर 3 steps ऑन पर्टिकुलर इंडेक्स। सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड द कोड। आपको रिटर्न करनी थी एक बूलियन एरे, राइट, आपने बना ली एक सेम साइज की बूलियन एरे, राइट, एंड आई हैव इनिशियलाइज्ड इट विद फॉल्स ऑब्वियसली। एंड आप क्या करेंगे? ith इंडेक्स पे बच्चे को कैंडी देंगे, कैंडीज i और कैंडीज i प्लस एक्स्ट्रा कैंडीज। उस कैंडीज देने के बाद आप चेक करेंगे कि मैक्सिमम एलिमेंट उस एरे में, जो अब एरे है, वो बराबर हो गया है क्या? बराबर किसके? उस पर्टिकुलर बच्चे की कैंडीज के। ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर वो एरे में कैंडीज देने के बाद, लेट्स से मैंने इसको दी कैंडीज और 5 हो गई है, तो ये जो एलिमेंट बन गया है कैंडीज ऑफ आई, जो बन गया है नया, ये जो बन गया है, कहाँ गया ये जो कैंडीज ऑफ आई बन गया है, क्या वो मैक्सिमम है पूरी एरे में एलिमेंट्स का? अगर है तो उस इंडेक्स पे आंसर ऑफ आई में, आंसर वाली एरे में उस इंडेक्स पे ट्रू रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज फॉल्स तो है ही पहले से ही, तो फॉल्स रिटर्न करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने इनिशियलाइज ही आंसर एरे फॉल्स से करी थी, राइट। और देने के बाद आपने चेक करी मैक्सिमम, उसके बाद क्या करना था? देनी है, चेक करी, उसके बाद ले लेनी है। ले लेंगे कैसे? कैंडीज ऑफ आई में से वापस एक्स्ट्रा कैंडीज सब्सट्रैक्ट कर देंगे, राइट। सो ऐसी पूरी एरे आइटरेट करके हम फाइंड करते रहेंगे ट्रू और फॉल्स, right, and in the end we would return the boolean array, right। so time complexity in this case would be what? n टाइम्स ही बाहर वाला लूप चलेगा, राइट, n टाइम्स ही बाहर वाला लूप चलेगा, और अंदर कुछ है, ये कांस्टेंट है, और जब मैक्सिमम एलिमेंट आप चेक करते हैं किसी भी एरे में,
तो O of n होता है. तो inverse case I would say हर बार आप nth हर टाइम आप चेक कर रहे हैं मैक्सिमम एलिमेंट, सो हर बार के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n स्क्वायर, right? So this was our 3 questions for the day from the series 75 lead code, right? From the series 75 lead codes from the topic array and strings, and we would be completing this series soon. और भी टॉपिक से आपका क्वेश्चंस आएंगे रोज. अब मैंने 3 क्वेश्चन एक पर्टिकुलर वीडियो में इसलिए लिए हैं क्योंकि ये इजी क्वेश्चन थे. ऑब्वियसली स्टूडेंट डोंट वेस्ट टाइम ऑन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. फॉर मीडियम एंड हार्ड क्वेश्चन ऑब्वियसली I would be making a single video only, so don't panic, or do try this question on your own and solve this question using different approaches. Obviously, for example, in this case I have left it with n square complexity only. Try optimizing it if it can be optimized. Try optimizing the space complexity, and obviously I would love you to try this GCD question on your own without finding this GCD, without using the inbuilt GCD function, right? Try attempt this question. String win का कुछ लगाओ O of m plus n वगैरह में करके देखो, पॉइंटर वगैरह लगा के कुछ आंसर आता था, राइट? सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, एंड कोड करते रहिए, कोड करना मत छोड़िए. ऑल द बेस्ट.